Namaskar, Adab, Shah Sri Akal, or Khushamaleed. Very, very good evening to all of you people. This is your master teacher Harsh Priyam, who is in front of all of you with the next session, social phobia. So, ladies and gentlemen, today we are going to talk about a very important topic, that is social phobia. And this topic is a very less talked and less discussed topic, especially in our Indian diaspora. And why this topic is important, because these days with the advent of social media and with the students, people, young kids getting into social media too much, this problem is very much visible right now. So what is actually social phobia and why we are talking about this? So let me come to this and चलिए बात करते हैं कि सोशल फोबिया होता क्या है. But before that, I would request all of you kindly like the video and hit the subscribe button for getting more such videos on this channel. Okay? Yeah. Now, what is social phobia? So, social phobia is basically a condition when a person faces a lot of difficulty, lot of anxiety in getting interacted with other people. And when I say other people, so here with other people, I mean to say those people with whom he is not very familiar and who is with whom he is not very comfortable, he or she, whatever. Now, in this situation, this anxiety might be ranging from a little uncomfortability to an extreme situation where uh, that person might be violent, that person might be not very comfortable, might be getting some attacks or something of that sort. And why this happens? Because a person, whenever he or she meets with any other person, that person starts judging himself or herself that that person might be not thinking something right about me. तो इसी को हम कहते हैं सोशल फोबिया. सोशल फोबिया में होता क्या है कि वो इंसान को ये बात समझ आती है कि यार पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, पता नहीं मैं ठीक से दिख रहा हूँ कि नहीं, पता नहीं मैं अच्छी दिख रही हूँ कि नहीं, पता नहीं मेरा पेट तो निकला हुआ नहीं दिख रहा है, पता नहीं उसको मेरा नाक कैसा लग रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. So this is what is called as social phobia, getting that anxiety in interacting or meeting with people. और खासकर सोशल मीडिया के आने के बाद से ये सारी चीज़ें ज़्यादा क्यों हो गई हैं? बिकॉज दीज डेज people do have their own world on mobile itself. So say for example, you might be a person who might be living in just a normal simple 2 BHK house, but you have like 1 million followers on your Instagram, or you might be having some 500k followers on your YouTube, something of that sort. Now 5 lakh people know you, or 10 lakh people know you on Instagram or on YouTube or whatever, but you still reside in a locality where everyone is a normal middle class family and they know you as just a middle class person. So you might be having that ego, okay, I'm such a famous person in front of the entire world because there are 1 million followers I do have. But for those people who are around you, for them, you're just a normal guy. हाँ. एंड इसी के कारण से इन लोगों को इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है कि पता नहीं मैं इनसे मिलूंगा, ये लोग मेरे को जज करेंगे. बिकॉज आसपास के लोग तो कैसे होते हैं, अरे ये ऐसा फटा कपड़ा क्यों पहन के आया है. बट वेन यू गो टू द वीडियो, शायद आपको वो फटा कपड़ा मतलब आप नहीं दिखाते हो, या शायद लोगों को फर्क नहीं पड़ता, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या शायद वही वहां पे ट्रेंड बन जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है. तो सोशल मीडिया के बाद से खासकर लोग अपनी पहचान सोशल मीडिया पे ज्यादा बनाना पसंद करते हैं, या सोशल मीडिया पे उनका जो प्रेजेंस है, जो उनको वाहवाही मिलती है, वो उनको ज्यादा सेटिस्फाइंग लगती है कंपेयर टू द acknowledgement that is being given by the society, because society के द्वारा acknowledgement दिया जाना is always tougher compared to the acknowledgement given on social media. So just say for example, अगर आप कोई भी एक अच्छा टैलेंट जानते हो, तो अगर आप उस अच्छे टैलेंट को दिखाते हो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, तो पीपल विल प्रेज यू. जस्ट से फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशनल लाइन्स या शायरी के 2 लाइन. तो अगर आप शायरी के 2 लाइन बोल देते हो या मोटिवेशनल के 2 लाइन बोल देते हो, तो आप शायद यूट्यूब पे शॉर्ट्स बना के डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स बना के डाल सकते हो, एंड देन पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू. लेकिन अगर यही ज्ञान तुम किसी इंसान को दोगे तो वो बोले अबे ज्ञान मत दे, चल भाग यहाँ से. तो दे डोंट प्रेज यू, एंड दैट इज हाउ द सोसाइटी इज. अब सोसाइटी की क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, दिस सेशन इज नॉट अबाउट दैट. बट मेरा मुद्दा क्या है कि सोशल मीडिया के आने के बाद से ये सोशल फोबिया ज़्यादा बढ़ गया है लोगों के अंदर. अब जब ये सोशल फोबिया बढ़ जाता है तो लोग, पहला तो ये भी हो रहा है कि यार पहले बच्चे खेलने जाते थे, बाहर लोगों से मिलते थे, उछलते कूदते थे, तो बहुत सारा इंटरेक्शन वो ऐसे ही सीख जाते थे. अब हमारी फैमिलीज छोटी हो गई हैं. जनरली आज के डेट में क्या होता है, मम्मी पापा भाई बहन और आप, दैट्स इट. परिवार इतने में खत्म हो जाता है.
अब हमारा वो ज़माना नहीं रहा कि मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची काका काकी मामा मौसा सारे लोग रहेंगे, ऐसा होता ही नहीं है। तो आपका आधा सोशल इंटरेक्शन तो वहीं हट गया। रिमेनिंग जो पार्ट है, चूंकि आज की जो जो जनरेशन है, आपका जनरेशन या आपके माता पिता का जनरेशन, वो इतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेंट्रिक हो गया है, आउटपुट सेंट्रिक हो गया है कि जैसे आपका एग्जाम्स होते हैं तो माता पिता आपके ट्रैवल नहीं करते होंगे, आप घर के पर्व त्योहार में नहीं जाते होंगे, दिवाली हो गई छठ हो गई सब आप अपने जगह पे मनाते हो, तो यू हार्डली गेट चांस टू इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल, ऐसा भी होता है। अब ये सारे इंटरेक्शन खत्म हो रहे हैं, कोविड पिछले 2 साल में कोविड रहा, बच्चों की खेलने की भी आदत चली गई है, तो मोटा मोटी इंटरेक्शन ऐसे भी कम हो रहा है। और इन इंटरेक्शंस के बाद इसीलिए मैंने मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे केसेस देखे हैं कि जब बच्चों को स्टेज पे बुला लिया जाता है, दे हैव अ लॉट ऑफ स्टेज फियर, दे आर नॉट इवन एबल टू स्पीक अप, कि भाई उनको कुछ बोलना है, 100 लोग अगर वहाँ देख रहे हैं उनको, वो 100 लोगों को देखते हुए उतना देखने से वो डर जाते हैं कि यार ये 100 लोग मेरे को देख रहे हैं, अगर मैं कुछ गलत बोल दिया या बोल दी कैसे मेरे को जज करेंगे। सो दिस एंटायर पार्ट इज दैट सोशल फोबिया, और ये सोशल फोबिया हटाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो एक बात तो है, इंटरनेट का जमाना अच्छा है, सोशल मीडिया भी अच्छा है, लेकिन सोशल मीडिया इज नॉट लाइफ। आपको जिंदगी जीने के लिए ह्यूमन काइंड जब बना था तब इंस्टाग्राम और यूट्यूब थोड़ी थे, उस वक्त तो लोग ही थे। और आगे भी चलकर जो एक रियलिटी है जिससे आप कभी भाग नहीं सकते, वो तो एक समाज है, दैट इज सोसाइटी, लोग तो रहेंगे, आपको लोगों से डील करना आना पड़ेगा, इजंट इट? तो सोशल मीडिया इज जस्ट वन पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट द कंप्लीट लाइफ, एंड हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न हाउ टू डील विद पीपल, हाउ टू डील विद दिस सोसाइटी। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है कि इन फियर, और हाँ इसमें डर क्या क्या रहता है, जैसे जो अभी ये सोशल फोबिया होता है तो इसमें डर, जो जैसे कि मैंने बताया कि भाई पता नहीं लोग कैसे आपको डील करेंगे, आपका सेल्फ कॉन्शियस, बहुत ज़्यादा आप सेल्फ कॉन्शियस फील करने लगते हो, पता नहीं बाल ठीक दिख रहा है, मेरा चेहरा सही है कि नहीं, मैं गोरा हूँ कि नहीं, मैं काला हूँ कि नहीं, ये ऐसा वैसा दिस दैट मोटा पतला सब सारी चीज़ें, मेरे कपड़े सही हैं कि नहीं, मेरे हाथ में मोबाइल बहुत चिंदी तो नहीं लग रहा, मेरा घड़ी सही है कि नहीं, वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है, तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है। ठीक, नाउ मूविंग फॉरवर्ड सोशल फोबिया होता किससे है तो वो भी मैंने आपको बता दिया। और हाँ ध्यान रखिएगा, सोशल फोबिया कई बार ऐसा भी होता है कि ये काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, मतलब लोगों के अंदर इतनी एंग्जाइटी हो जाती है कि वो लोगों से मिलना ही बंद कर देते हैं, वो इतना परेशान। हालांकि हमारे इंडिया में ऐसे केसेस कम होते हैं, यूएस की कंट्रीज में या वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे केसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी होते हैं, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ नहीं होते। तो लाइक दे गेट फ्रीक्ड आउट जब वो लोगों से मिलते हैं, या फिर जब वो किसी और से ज़बरदस्ती उनको मिलना पड़ता है, देख लेते हैं वगैरह वगैरह, तो दे गेट फ्रीक्ड आउट। और ये अगेन ये एक्सट्रीम लेवल होते होते कई बार डेंजरस भी हो जाता है, लाइक दे बिकम वायलेंट, वो भी एक चीज़ है। ठीक है ना, मूविंग फॉरवर्ड, अब डीलिंग विद सोशल फोबिया, तो डील कैसे करना है, सबसे मुद्दे की बात तो ये है कि भैया इसको डील कैसे करना है और इसको ठीक कैसे करना है। तो देखो सबसे पहला काम जो होता है किसी भी चीज़ को डील करने के लिए, दैट यू हैव टू एक्नॉलेज, आपको पहले मानना पड़ेगा कि हाँ भैया ऐसा प्रॉब्लम है मेरे में। एक्सटेंट कुछ भी हो सकता है आपके अंदर बस 5-10% है कि सर नए लोगों से मिलने में थोड़ी हिचकिचाहट तो होती है, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशल फोबिया, बट मैं आई वुड से दैट इज 5 to 10%, वो नॉर्मल होता है, सबके अंदर होता है। शायद मैं भी कभी किसी के मैं भी कभी ट्रेन में जाऊं तो आपने कई बार देखा होगा कुछ ऐसे बड़े मनचले आशिक से होते हैं, वो किसी से भी कोई भी लड़की से तुरंत बात कर लेते हैं, और बहुत सारे लोगों को हिचकिचाहट बड़ी होती है, लाइक कैसे बात करूं। जैसे मैं हूं तो मैं कभी अनजान प्लेस पे रहूंगा तो किसी भी इंसान से बात करने में मेरे को भी थोड़ी हिचक होती है कि अचानक से आई एम नॉट एबल टू इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन, सामने वाला बोला तो ठीक है, then I'll reply and then we'll have a conversation. But I have seen lot of people that they themselves initiate the conversation. तो शायद वो सोशल फोबिया उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, बट मेरे अंदर मैं कहता हूँ कि शायद हाँ 5-10% होगा। तो हैविंग दैट 5 to 10% इट्स ओके, वो नॉर्मल भी कह सकते हो, या फिर अगर आप उसको भी डील करना चाहो, जैसे अगर मैं सोचूं कि यार मेरे को उसको भी डील करना है, मेरे को वो 5-10% भी नहीं रखना है, तो मैं कर सकता हूँ, बट मेरे को लगता है उतना ठीक है, उतना होना भी चाहिए, थोड़ा सा रिजर्व रहना भी जरूरी है, बहुत ज़्यादा बक 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 करके कोई फ़ायदा नहीं। और मैं ऐसे ही इतना बक 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 करते रहता हूँ स्क्रीन पे, तो उसके बाद मेरे को ज़्यादा बोलने की इच्छा रहती नहीं है। अब मुद्दा क्या है कि आपको पहले तो ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आपके अंदर सोशल फोबिया है और कितना है। तो कुछ परसेंटेज तो ठीक है, बट अगर वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मान लो मम्मी ने बोला कि बेटा आजा बाहर मेहमान आए हैं मिल ले, एंड देन यू लाइक नहीं, मैं मेरे को नहीं मिलना,
दिस इज नॉट सो राइट प्रोबेबली। या फिर मेहमान आए हैं, आपको ज़बरदस्ती बिठा दिया गया, 1 घंटा आप बैठे, आप कुछ बोले ही नहीं, अगेन नॉट समथिंग वेरी गुड। या फिर आप कभी कहीं बाहर जाते ही नहीं हो कि 10 लोगों से मिलना पड़ेगा, फिर मैं क्या बोलूँगा, या कोई सोशल गैदरिंग में नहीं जाते हो, तो दिस इज अ पार्ट दैट दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, तो पहला तो आप एक्नॉलेज करो कि हाँ भैया सोशल फोबिया है मेरे को, और मेरे को इसको ठीक करना है। अब जब आप जैसे ही एक्नॉलेज करते हो, तो एक्नॉलेजमेंट से ही भी बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएंगी, क्योंकि अब आपके दिमाग में है कि हाँ भाई इसको सही करना है, ये कुछ गड़बड़ तो है, झोल तो मचा हुआ है कुछ अंदर, जिसको सही करना है। अब जब आप सोच लोगे कि ये भैया इसको सही करना है, तो सही करना कैसे है वो समझो। तो देखो, करना बहुत सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। आपको करना ये है कि आपको धीरे धीरे लोगों से बात करने की आदत डालनी है अपने अंदर, दैट यू हैव टू टेल योरसेल्फ दैट ओके आई हैव टू टॉक टू पीपल इवन विदाउट रीजन, बिकॉज दैट इज योर प्रैक्टिस ग्राउंड। आपको एक्चुअली में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लॉट ऑफ यू माई बी इवन इंट्रोवर्ट्स, जहां आप ज्यादा बोलते नहीं हो, तो आपको थोड़ा सा बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू माइट स्टार्ट दिस विथ योर क्लोज्ड सर्कल। मतलब आपके घर में माता पिता हैं, तो अगर आप माता पिता से खूब बात करते हो तो ठीक है, फाइन। तो फिर कोई थोड़ा ऐसा दूर का रिश्तेदार पकड़ो जिससे आप बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते हो, बट हाँ ठीक ठाक वो इंसान है। अगर आप मतलब आपको लगता है कि ठीक है, बात करने की कोशिश करें तो कुछ अच्छा बात निकल कर आए, यू दैट माइट बी योर कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। फिर धीरे धीरे करके वो सर्कल को थोड़ा और बड़ा करो, थोड़ा और बड़ा करो, एंड देन बड़ा करते करते एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचो जब आप अनजान लोगों से भी बात कर पाओ, either by initiating a conversation on your own or they starting a conversation and then you are gelling up in that conversation. तो ये एक सबसे सिंपल सा तरीका है कि आप बात करने की कोशिश करो, धीरे 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 अपने सर्कल को बड़ा करते हुए क्लोज सर्कल से थोड़ा सा पहले बाहर निकलो, पेरीफेरी, पेरीफेरी एज इन जो जान पहचान के लोग हैं घर परिवार में ही, फिर थोड़ा सा और दूर के रिश्तेदार, फिर धीरे करते करते फिर अनजान लोग। तो दिस विल एक्चुअली हेल्प यू इन कटिंग डाउन द सोशल फोबिया। ठीक है, अब यहां तक सबको समझ में आ गया ना। मूविंग फॉरवर्ड, तो धीरे धीरे आप ज्यादा कंफर्टेबल होते जाएंगे और आपका सोशल फोबिया बहुत हद तक कम होता जाएगा ना। मूविंग फॉरवर्ड, फैमिली और फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया कि भैया फैमिली और फ्रेंड्स से आप बात कीजिए। अब होता क्या है कि कई बार सोशल फोबिया ना फैमिली और फ्रेंड्स के कारण से भी आता है, जैसे मैंने आपको बताया। फैमिली के कारण से कैसे, तो भाई अगर फैमिली ऐसा है जो कहीं जाता नहीं है, या आपका फैमिली ऐसा है जो बहुत अलग थलग रहता है, मान लो आपके माता पिता हैं, कम लोगों से मिलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा गेस्ट लोग नहीं आते हैं, बहुत गैदरिंग नहीं होती है, तो आप ऐसे ही एक ऐसे इंसान बन जाओगे जहाँ पे आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे। तो फैमिली, भाई ऐसी फैमिली, मान लो आपके माता पिता ऐसे हैं, तो आप अपने माता पिता को तो नहीं बदल पाओगे ना, बिकॉज वो तो ऐसे ही है। तो कई बार फैमिली की वजह से भी ये सोशल फोबिया आता है। तो अगर ऐसा स्थिति है तो आपको शायद फैमिली से बाहर निकल के लोगों से धीरे धीरे बात करना शुरू करना पड़ेगा। मेड बी योर स्कूल, मेड बी योर हॉबी क्लासेस, डांस क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ठीक है, और कई बार फ्रेंड्स गलत इन्फ्लुएंस करते हैं या गलत काम करते हैं। देखो जनरली तो क्या होता है कि फ्रेंड्स का काम बड़ा पॉजिटिव होता है, वो आपको सोशल फोबिक नहीं होने देते, बिकॉज दोस्तों के साथ ही तो इंसान खुलता है। तो फ्रेंड्स कई बार तो पॉजिटिव बात काम करते हैं, लेकिन कई बार होता क्या है कि फ्रेंड्स इतना ज्यादा कर्स करते हैं और इतना ज्यादा मजाक उड़ाते हैं कि इंसान फ्रेंड बनाने से ही डर जाता है, और वो इंसान फ्रेंड्स बनाता नहीं है, या फिर उन फ्रेंड्स की वजह से वो इंसान सोशली फोबिक हो जाता है। तो आई स्टिल रिमेंबर, जैसे मैं जब छोटा था तो मेरे क्लास में एक लड़की थी, और वो लड़की पूरे क्लास में एकदम सबसे लास्ट बेंच पे कोने में जाके बैठती थी। तो और कभी किसी का ध्यान भी नहीं किया कि यार वो लड़की क्लास में भी है। तो एक बार आई स्टिल रिमेंबर, मैं उस वक्त शायद काफ़ी छोटे 6 या 7 क्लास में पढ़ता था। आई स्टिल रिमेंबर, मेरी एक मैम थी और सोशल की मैम, तो उन्होंने उस लड़की को खड़ा किया एंड शी सेड कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने अपना नाम बताया, आई स्टिल डोंट रिमेंबर उसका नाम क्या था। तो मैम ने पूछा तुम एकदम उधर क्यों बैठे रहती हो बाकी लड़कियों के साथ। तो शी सेड मैम मेरा कोई दोस्त नहीं है। एंड मैम लाइक व्हाट, इतनी बड़ी क्लास में यहाँ 60 बच्चे बैठे हैं, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। और शी सेड नो। तो उसके बाद मैम ने बाकी लड़कियों से पूछा क्यों भाई, इस लड़की का कोई दोस्त है क्या। और लिटरली यू वोंट बिलीव दैट वी हैड इन दैट क्लास वी हैड समथिंग अराउंड 32 और 35 गर्ल्स आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स। 32-35 लड़कियों में से किसी ने नहीं कहा हाँ कि हाँ मैम ये मेरी दोस्त है। नाउ यू कैन इमेजिन कि एक 32-35 बच्चों की क्लास में लड़कियों में एक भी लड़की उसकी दोस्त नहीं थी। नाउ आई डोंट नो कि उस लड़की के का पास्ट क्या था,
उसकी कभी किसी से लड़ाई हुई थी या वो फ्रेंडली थी ही नहीं। लेकिन दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, जिस तरीके से वो लड़की बात करी थी उससे तो लगा नहीं कि वो बहुत मार पिटाई वाली लड़की है, तो ठीक ठाक लड़की दिख रही थी। बट उस हिसाब से मेरे को क्या लगा कि यार देखो, ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। कोई भी बच्चा ऐसा हो सकता है, लड़की हो चाहे लड़का, जिसका पूरे क्लास में एक भी दोस्त नहीं है। एंड दिस एक्चुअली इंस्टिगेट्स द सोशल फोबिया कि यार मतलब कोई बच्चा, अब सोचो 60 बच्चों की क्लास है, उस लड़की का कोई लड़का भी दोस्त नहीं, कोई लड़की भी दोस्त नहीं। अब वो बेचारी बच्ची सोशल फोबिक हो गई तो उसका सबसे बड़ा कारण उसके फ्रेंड्स होंगे, जो शायद कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं किए। हो सकता है वो पहले से इंट्रोवर्ट हो एंड देन पीपल वुड नॉट हैव इवन ट्राइड इट, या शायद किसी ने सोचा ही नहीं कि यार इससे बात करनी चाहिए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और कई बार इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, माइट बी फिजिकल अपीयरेंसेस, माइट बी योर वे ऑफ स्पीकिंग। कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे तुम किसी दूसरे स्टेट से, तुम्हारे पिताजी का ट्रांसफर दूसरे स्टेट में हुआ, तो आपके बोलचाल की भाषा चेंज हो जाती है, कई मतलब एकदम ही अलग हो जाता है। कई बार बच्चे उसके कारण से भी नहीं जुड़ते हैं। बट कोई भी कारण हो, अगर फ्रेंड्स आपका कारण है तो देन अगेन यू नीड टू ब्रेक द सर्कल। फ्रेंड्स के सर्कल से थोड़ा बाहर निकलो, घर परिवार में देखो, उन लोगों से बात करो। घर परिवार भी नहीं हो रहा, देन ट्राई टू हैव दैट सर्कल इन कोचिंग, बट यू नीड टू ट्राई, आपको ट्राई करना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे आउट। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। हाँ, मेक वन लिटिल चेंज, ये जो मैंने आपको बोला, हर रोज धीरे धीरे थोड़ा सा आदत बदलो। देखो एक दिन में ना पैराडाइम शिफ्ट नहीं होता है। मतलब पैराडाइम शिफ्ट बोले तो ऐसा नहीं होगा कि आज मैंने तुमको समझाया और कल तुम सबसे बात करना शुरू कर दोगे, ऐसा कभी नहीं होता। बट वो लिटिल चेंज है ना कि चलो ठीक है, आज मैं खुद से कोशिश करूंगा अपनी मौसी से बात करने का, या आज मैं खुद से कोशिश करूंगा अपने वो दूर वाले चाचा जी से बात करने का, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो ये जो खुद से कोशिश होती है ना, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। ये आपको ये बताता है कि यार ऐसा नहीं है कि तुम प्रयास नहीं कर सकते, तुम प्रयास करोगे तो तुम अच्छा करोगे, और तुम धीरे धीरे प्रयास करोगे तो तुम्हारे अंदर बदलाव भी आएगा। तो जब आप अपने ऊपर कंट्रोल सिद्ध करते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, और ये कॉन्फिडेंस आपको बहुत ऊपर लेकर जाता है। तो इसलिए मेक वन लिटिल चेंज एवरी डे एंड दैट विल मेक यू फील मोर कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी मोर एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बिकम योर ओन बेस्ट एडवोकेट। और अपने आप को जज करना आप ही, मतलब सबसे बढ़िया जज आप ही हैं। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना, या ये सोचना बंद करो कि दूसरा क्या सोच रहा होगा। अरे दूसरा जो भी सोच रहा है सोचने दो ना यार। तुम अपने एडवोकेट, तुमको अगर कोई कपड़ा पहनकर खुशी मिल रही है, आईने के सामने जाओ, तुमको लगता है हाँ अच्छा है, तो हाँ अच्छा है। फिर सामने वाला बोले अरे यार ये कैसा कपड़ा पहन रखा है, ठीक है भाई, तुम जाओ, तुम अपनी लाइफ जियो, मेरे को ये कपड़ा अच्छा लग रहा है, मैं पहनूंगा या पहनूंगी। तुमने मेकअप किया, तुमने, या तुम कहीं घूमने जा रहे हो और एंड यू अप्लाइड सम न्यू फैशन, इफ यू लाइक इट दैट्स फाइन, नो मैटर दूसरा क्या सोचेगा। अगर आपका कोई फिजिकल अपीयरेंस है, आप गोरे हो, काले हो, नाक लंबी है, कान छोटी है, वॉट एवर, गॉड गिफ्ट है भाई, उसमें क्या कर सकते हो। मतलब अब तुम भगवान से जाकर लड़ाई करोगे क्या कि मेरे नाक लंबी क्यों दी या मेरी नाक छोटी क्यों दी। नहीं, जो है। अब कोई उस पर आके बोले अरे तू तो ऐसा है, तो ठीक है भाई बोल ले, तू ही बेवकूफ़ है, तेरे को ये बात नहीं समझ में आती कि भाई भगवान ने जिसे जैसा बनाया वैसा बना दिया है। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड कि दूसरा आपको जज नहीं कर सकता। अगर आप अपने आप को जज नहीं करोगे, अगर आप ऐसे रिप्लाई लोगों को दोगे, तो लोग समझ जाएंगे भैया इसको बोलने से कोई फायदा नहीं और इसको बोलना नहीं है। लेकिन अगर आप उसकी बात सुनकर कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे, तो लोग समझ जाएंगे अच्छा इसको भी कॉन्फिडेंस नहीं है इसके फिजिकल अपीयरेंस पे, इसको भी लगता है कि ये गड़बड़ है, देन पीपल विल हॉन्ट यू, पीपल विल टॉन्ट यू। ठीक है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा दैट यू आर द ओन, यू आर योर ओन बेस्ट एडवोकेट। नो वन एल्स कैन टेल यू दैट हाउ यू आर लुकिंग, हाउ यू आर, एंड हाउ यू शुड बी, हाउ यू शुड नॉट बी। ठीक है, ये आप खुद को बोलो, किसी और को मत बोलने दो। ठीक, चलिए, तो सेइंग यस एंड नो। अब सेइंग यस एंड नो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेइंग यस एंड नो का क्या मतलब होता है, कई बार होता क्या है कि जैसे हम इंट्रोवर्ट तभी भी हो जाते हैं, या फिर कई बार हम क्या कहते हैं, लोगों से इसलिए भी कटना चाहते हैं क्योंकि हमारे आसपास के जो सर्कल होते हैं ना, वो शायद हमें सही नहीं लगते। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। तो जब मैं स्कूल में था तो मैं काफ़ी सुधरा हुआ बच्चा था। सुधरा हुआ एज इन लाइक मेरे को गाली उली बोलना ना बचपन से मैंने सीखा था, ना मेरे को अच्छा लगता था। तो जब कोई बोलता था तो भाई, एक तो वो बच्चा होता है जो आसपास के माहौल को देखकर गाली उली दे, अरे दूसरा गाली दे रहा है मैं भी सीखूंगा, मैं भी, अरे ये वाला गाली दिया इसका क्या मतलब होता है। तो मैं एक ऐसा इंसान था जिसको मेरे को गाली उली सीखने में इंटरेस्ट भी नहीं होता था। तो लाइक मेरे आसपास जितने भी लड़के लोग थे, दोस्त लोग थे, वो सभी गाली देते थे, लाइक बिंदास जीते थे अपने लाइफ को। मेरे को एकदम पसंद नहीं आता था। तो
मैं बहुत हद तक इस कारण से भी इंट्रोवर्ट था अपने बचपन के टाइम पे, क्योंकि मेरे आसपास के जो लोग थे ना वो मेरे को पसंद नहीं थे। अब होता होता क्या था, जब वो लोग मेरे को पसंद नहीं थे तो मैं उनसे कभी दोस्ती करना ही नहीं चाहता था। आई ऑलवेज यूज टू फील लाइक यार ये बेकार लोग हैं, इनसे दोस्ती करके करूंगा क्या मैं। तो ऐसे में होता क्या है कि जब कई बार आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं ना, तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड एंड यू हैव टू से यस और नो। अगर आपको बंदा या बंदी सही नहीं लग रहा, यू हैव टू से स्ट्रांगली नो, आई डोंट वांट योर कंपनी, गेट आउट फ्रॉम हियर। मैं ऐसा नहीं कह पाता था, नहीं कह पाता था, तो इसके कारण से होता क्या था ना, अंदर ही अंदर घुटन, और अपने आप को यू स्टार्ट क्या कहते हैं, आप अपने आप को कोसने लगते हो कि यार अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा, पता नहीं कौन से एनवायरनमेंट में आ गया, कैसे लोग मिल गए। तो आपको, अगर आप वो स्ट्रांगली नो कह पाते हो लोगों को, या फिर स्ट्रांगली कई बार यस कह पाते हो कि हाँ ठीक है, आई आई वांट टू बी हियर, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट। क्योंकि कई बार जो इंट्रोवर्ट होते हैं ना, वो अपने हक के लिए लड़ नहीं पाते, बोल नहीं पाते किसी को कि यार नहीं मेरे को ये चाहिए या मेरे को ऐसा करना है। लाइक मेरे से किसी ने पूछा ही नहीं, उसने ऐसा ही कर दिया, मैंने सोचा बोलूंगा बोलूंगी, बट मैं बोल ही नहीं पाया। तो if you are able to say that yes or no, that will also bring a lot of impact in your personality, that yes, this person is very vocal, he or she is able to speak up and say things that कि हाँ भैया मेरे को ऐसा चाहिए या ऐसा चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है। now moving forward, congratulate yourself। हाँ, इस बात का और इंपॉर्टेंट चीज है, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, the society accepts you the same way as you accept yourself। If you find yourself to be very awesome person, the society will accept you the same way, that yes, you are a very awesome person। But if you accept yourself as like पता नहीं मेरे लाइफ में क्या है, पता नहीं मैं किसी काम का हूँ भी या नहीं, तो society will also find you the same way, या भाई पता नहीं ये काम का है कि नहीं। या फिर if you start feeling yourself कि यार मैं ना बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ, I don't like myself, तो society will never like you, believe me। तो ये बहुत जरूरी होता है दैट वी शुड ऑलवेज मेक आर सेल्फ और लुक आर सेल्फ वेरी हाई। हम अपनी नजरों में बहुत अच्छे इंसान होने चाहिए, हमें ये अपने अंदर से ये जरूर फील होना चाहिए कि यार मैं मस्त आदमी हूं, मैं तो एकदम चैंपियन हूं, मैं तो बहुत सुंदर हूं, मैं तो एकदम वाव हूं। आप जितना ऐसा सोचोगे, सोसाइटी आपके लिए एकदम वैसा ही सोचेगी। So that is why I say congratulate yourself, make yourself happy, make yourself proud that yes, you have been doing some awesome things. And if you will feel that, you will have that same radiation, same energy being propagated to everyone around you. They will also feel yes, this is an awesome guy. Let's congratulate him or her. ठीक है, तो be very confident, and this will boost your confidence a lot. Keeping congratulating yourself that yes, I did this, I made this, I done that, I have nailed it. So these all things will help you a lot, believe me। ठीक है, चलिए, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, I hope that I would have made a point in your life, I would have made a distinction in your life by telling you all these points। तो अगर आप लोगों को ये point समझ में आया, and if it makes a difference for all of you in your life, kindly just leave a comment in the comment box, or you can leave a heart in the comment box। I would understand that you like the content। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। बस आज के सेशन में इतना ही था, मुलाकात करेंगे अब अगले सेशन में किसी और नए टॉपिक के साथ। ऑल्दो यू कैन ऑलवेज सजेस्ट मी अ टॉपिक बाय राइटिंग इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल पिक इट अप फ्रॉम देयर। ओके, तो चलो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, बाय बाय।